आपकी अनुमति है मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर इनाम के समक्ष लिखित कागजात को सभा पटल पर रखा। Item number 3, Shri Sukant Majumdar. Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srijan Chaudhary, I rise to lay on the table the paper listed against his name at 7 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8th December 2020. Item number 4, Shri Pankaj Chaudhary. अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मैं नाम के सामने संख्या 4 वर्ण कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर। Item number 5, Shri Shobha Karalaje. स्पीकर, आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन पटल पर रखती हूँ। Item number 6, Shri Kirti Vardhan Singh. Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned as serial number 6 in today's list of business. Thank you. Item number 7, Shri Harsh Malhotra. माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री के अधीन मामले सदन में उठाएं, मैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूँ। रख दें सब। आइटम नंबर 8, श्री रंगा अप्पा। अध्यक्ष, आज की परीक्षित कार्यसूची मेरे नाम के समक्ष यथाशुद्ध इसके और सौर और परियोजना के कार्यपालन का मूल्यांकन ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 10वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, श्री रंगा बढ़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाशुद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 3 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, श्री राजू राय। जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम समक्ष यथासूचीबद्ध शिक्षा मंत्रालय संबंधित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और संस्थानों एमटीए एनएससी प्रारूप यूजीसी विधिनियम आईसीएचआर आईसीपीआर आईसीएसएसआर आईआईएस शिमला और ओरोविला फाउंडेशन की समीक्षा संबंधित शिक्षा महिला बाल कल्याण युवा के संबंध संसद स्थायी समिति का 371 प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी सभा के पटल पर रखा हूँ। आइटम नंबर 11, श्री मेहता। Subject to the final action 10 statements, Hindi and English version of government on the recommendation contained in chapter 1 of the following reports of the committee. 14th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 2045 on action taken by the government on the observation recommendations. 10th first report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 2045 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Expenditure Asset Management. 15th report of Lok Sabha, the Standing Committee of Finance 2025 on the recommendations contained the second report of Standing Committee on Finance, Demand and Grants 2045, Ministry of Finance, Department of Revenue. 16th report, 18th Lok Sabha of Standing Committee on Finance 2045 and acts taken by the government on the observation recommendations contained in third report the Standing Committee on Finance on Demand for Grants 2045 of the Ministry of Corporate Affairs. 17th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 2045 on action taken by the government on the observation regulations contained in fourth report the Standing Committee on Finance on Demand for Grants 2024-25 of the Ministry of Plan, Niti Aayog. 18th report, 18th Lok Sabha Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government. The commission contained the fifth report of 18th Lok Sabha on demand for grants 24-25 of the Ministry of Statistics Program. आइटम नंबर 10, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध पालन समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में सभापति की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा तल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण करें। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब
देश गुलामी के अंधकार से जुड़ा था। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता सब देखने का साथ दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर डटे हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहे हुए अपने अंतिम समय भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज हम अज्ञात सभी वीरों को प्रणाम करते हैं, जिनके बलिदान ने को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बना दिया। वंदे मातरम की ऊर्जा आज भी उतनी प्रखर है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह विषय पर अपने का सदन को साझा करें। आपका और सदन के सभी मान्य सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना। जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी भी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्व मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी भी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस मनाया और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ाव से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गौंठ दिया गया। जब वंदे मातरम 2 साल हुआ तब देशभक्ति के जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी, उसके जब साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड
हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोग के खत गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के आरंभ करने खड़ा हुआ, यहाँ कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं एक्चुअली हमारी ये रण स्वीकार करने का अवसर है। जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठे और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इसे हम प्रेरणा लेके वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, गांव हम सब मिलके चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम हम सब की प्रेरणा बने, हम सब ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में भारत बना करके हमें इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, तबीयत तो ठीक है ना? कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे लिखा गया था जब 1870 के स्वतंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें उनका जो राष्ट्रीय गीत था गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम ने चुनौती दी, ईंट का पत्थर से दिया, उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ अर्थ बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा था। उसी भाव, उसी संस्कारों, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी।
वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात में याद आती है। वेद काल में कहा गया है, माता ही पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वरापि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित को वस्त्र स्थली को चीर कर वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय जी, कुछ दिन पूर्व वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था। मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी, भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा खा सके एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहाँ भी जिन्होंने तैयार वो लोग ही वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा उस हीन भावना को झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, त्वमि दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल धारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां, अमलां अतुलां, सुजलां शुभ्रां मातरं वंदे मातरम्। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने
धारण करने वाली चंडी भी है। अरे जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा, गुलामी की हताशाएं हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन राज्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास करा कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त, हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के घर पड़ा वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावना से गुजरा था, उसके तट पर लबित था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय जी, कांग्रेस समझते थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। अब जिस तरह से अपने सपने करके आए थे, हम उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ा नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे, वो एक वक्त था जब बंगाल का बहुत सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे बंगाल का जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेज को मानना, एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दीवारों राज करते रहेंगे, ये की सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये प्राप्त किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा बनाया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ भारत को कमजोर करके बीच और अधिक होने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में देश लिए। इस वक्त बड़ी खबर निकल रही है मध्य प्रदेश के रतलाम
रात में रिजर्व हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर पर पानी डाल दिया, जिससे गैस का असर कम होने के बजाय और इससे 3 दमकल कर्मचारी समेत 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। को रतलाम मेडिकल कॉलेज किया गया है। रिजर्व बंद करने के लिए रतलाम फैक्ट्री और नागदा से टेक्निकल टीम बुलाई गई है। और डोबे थाना पुलिस ने फैक्ट्री पिता अब्दुल रहीम खान निवासी भगत जावरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गैस रिजर्व होने वाला फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण नहीं होने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। फायर लॉरी के ड्राइवर कुलदीप गहलोत के मुताबिक गैस रिजर्व की सूचना पर हम रात 7:30 बजे वहां पहुंचे थे। वहां मौजूद जवानों ने गाड़ी के अंदर ले जाकर किया। हमने पानी की फायरिंग स्टार्ट की। मेरे साथ एक साथी गाड़ी में ऊपर से सिलेंडर पर पानी पर छिड़काव किया गया। पानी गिरते ही गैस का रिजर्व तेज हो गया। हमें घुटन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, आंखें जलन होने लगी। हमारे पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं था, लगा रखा था। हालत बिगड़ बाहर आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जनपद प्रयागराज फूलपुर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार राम नरेश यादव के पिता भगवती दीन यादव का मैदान में उतरी थी वंदे मातरम के स्वाभिमान के लिए। इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी। और तब 22 साल की एक वीरांगना श्रीमती सरोजिनी बोस, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावना को देखी और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जो प्रत्यय रहा है, जब तक ये प्रत्यय नहीं हटता है, मैं अपनी सूर्य जो पहली हुई निकाल दूंगी। भारत में वो जमाना सूर्य निकालना यानी महिला के जीवन की बहुत बड़ी घटना होगा। लेकिन के लिए वंदे मातरम को थी। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक वंदे मातरम प्रतिबंध नहीं हटा मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा शराब दे दिया था। अरे देश बालक थे, उनको कोड़ी की सजा होती, छोटी उम्र है, वो जेल में बंद कर दिया जाता। और उन दिनों खासकर बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के अंग्रेजों ने नाक को दम कर दिया। उस समय गीत गुना था बंगाल में, जाए जावे जीवोनो छोड़े, जाए जावे जीवों छोड़े, जोगो तो मरे तो मां काजे, वंदे मातरम बोले। हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते और मातरम कहते जीवन भी आ रहा है, तो वो जीवन भी अन्य है। ये बंगाल गलियों में बैठे है। ये गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था। हम बच्चों की हिम्मत, देश को हिम्मत थी। बंगाल गलियों से आज देश की आवाज बनी थी। 1905 में फरीदपुर गांव में बहुत बड़े वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। अंग्रेज ने बेरहमी से कोड़े मारे, एक कार से जन और के बीच लड़ाई में मजबूर कर दिया था। हुआ था 1906 नागपुर में नील की हल के उन पर ही अंग्रेजों ऐसे ही जुर्म किए थे। गुना यही था कि वो एक वंदे मातरम बोल के खड़े हुए थे और वंदे मातरम के लिए मंत्र का महाभय अपनी ताकत से सिद्ध कर दिया था। हमारे राम सपूत बिना किसी डर के फांसी पर चढ़े थे और आखिर साथ तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यही उनका भाव घोष रहता था। खुदराम बोस, बदरलाल धिंगरा, रामप्रताप बिस्मल, असफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, रामप्रताप विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए अलग जगह होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रज्ञा करने वाले अलग थे, लोग थे जिन पर जुल्म आता की भाषा भी थी। लेकिन एक भारत देश भारत, इन सबका मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चड्डाओं की स्वराज क्रांति
जिन युवाओं ने अंग्रेजों को खिलौती बेइतिहास से चमकते हुए नाम है अरुपालाल, कुलीन विकास घोष, त्रिपुर सेन, इन सब ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। महाससुर देव 1934 में फांसी दी गई तो उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा और हमें एक ही शब्द की गूंज थी और वो शब्द था वंदे मातरम। हमें इस बात को गर्व होना चाहिए, दुनिया के इतिहास में कहीं पर ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित का हो, जीवन आहुति करने के लिए निकल पड़े हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हम यहाँ पैदा करते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। इस विश्व के लिए युवा है, हमें बस रहना चाहिए तो दुनिया भी मानना शुरू करेगी। हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये विधान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को उसने का सामर्थ्य देने का मंत्र था और मंत्र वंदे मातरम था। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, उन्होंने लिखा था एक ही सूत्र बांधी आशी सहस्त्र मौन एक ही गर्ज छुपी सहस्त्र मौन वंदे मातरम एक बंधु भी सहस्त्र मन एक ही कार्य अर्पित सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर जी आदरणीय जी उसी काल में वंदे मातरम रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों के प्रकार से भूमि बन गया था, वो लंदन का इंडिया हाउस वीर सावरकर वहां वंदे मातरम भी और वहां एक बार बात होता था देश के लिए जीवन मरने के लिए बहुत अवसर रहता था। उसी समय बिपिन चंद्रपाल और हर्ष घोष उन्हें अखबार डाले, उस अखबार का नाम भी उन्हें वंदे मातरम था। यहाँ डगर डगर अंग्रेजों की नींद हमने वंदे मातरम काफी बता और इसे उन्होंने इस नंबर का अंग्रेजों ने अखबार रोक दी तो मैडम भिक्का काम पेज में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता दिखाया। उसमें माचिस की दिया मैच बॉक्स वहां से लेकर के बड़े बड़े शिप उस पर ही वंदे मातरम लिखने की परंपरा और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का माध्यम गया, स्वदेश का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेश के मंत्र की तरफ विस्तार होता गया। जी मैं एक और का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वीओ चिदम्बरम पिल्लाई उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बना तो उस पर भी लिखा वंदे मातरम। राष्ट्रपति सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम तमिल में अनुवाद किया स्तुति के लिए कि कई तमिल देशभक्ति गीतों वंदे मातरम की श्रद्धा साफ साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को हो सकता है तमिलनाडु के लोग पता हो, लेकिन सब लोगों को बात पता न हो कि भारत का ध्वज गीत विश्व भारती ने ही लिखा। उस ध्वज गीत का वर्णन जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, में इस ध्वज गीत का शीर्षक आइन मणि कोडी पारी तांदू बिंदु हिंदू पारी अर्थात देश प्रेमियों दर्शन कर लो, हर अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो। आगे अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावना थी वो रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साहित्य का इंडियन ओपिनियन और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी 2 दिसंबर 1905 जो लिखा उसमें कोट करा, उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे
बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है, उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावना महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमें देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देता है और उसकी स्तुति करता है। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में था, देश के कोने हर व्यक्ति जीवन जो भी देश जी दे जाता था, उन सबके लिए वंदे मातरम की बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? अन्याय क्यों हुआ? कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बाबू की भावनाओं पर भी भाग गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? बताऊं, आज जब हम वंदे मातरम 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिसके वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोधी राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करार जवाब देते, मुस्लिम के बयानों की निंदा करते, वंदे मातरम की अपनी खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन क्या हुआ? वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो कुछ नहीं जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी की। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये दोनों सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट था, नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको ना गया और वहां पर समीक्षा करता ही क्या? पूरा देश हतबक था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने पर रैलियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े करने, उस फैसले के पीछे नाम पहना गया, कौला पहना गया
कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के चुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए चुनना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी थी है और इतना ही आए थी, चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उनके साथी और जिनके साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा चुनौतियों का कालखंड होता है। जब संकटों का कालखंड होता है तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सच अर्थ में छोटी से कसी जाती है। जब कटी का काल आता है तब भी ये होता है कि हम कितने दृढ़ है, कितने सतर्क है, कितने सार्थवान है। 1947 देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जड़ता वही रही, वही प्रेम मिलती रही। भारत जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम के भाव के साथ आगे बढ़ा। इसका अर्थ क्या है जाने दो। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, तिरंगे की बात आती है, चारों तरफ भाव दिखता है तिरंगे की संख्या। एक जमाना था देश में खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम भाव मेरे देश के किसानों ने भंडार कर दी है और इसके पीछे भाव ही है वंदे मातरम। देश आजादी को कुचलने की कोशिश के पीठ पे छुरा भोग गया, आपाल ठोक दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी। देश खड़ा हुआ और त्रास कर गया। देश पर जब भी छोड़ गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का था। देश का जवान सीमा बढ़ गया और मां भारत की झंडा फहरा रहा। देश का महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। इसको भावनाओं से जोड़ने वाला सार्थवाद एक ऊर्जा प्रवाह है, ये चेतना प्रवाह है, ये संस्कृति का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। वंदे मातरम हमारे लिए स्मरण करने का काम नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेने का काम बन जाए और हम उसके पर समर्पित हो जाए। और मैंने कहा हम लोग पक्का है वंदे मातरम का, ये वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहाँ पहुंचे। और इसलिए हमारा भारत चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है, राष्ट्रपति कर्तव्य के लिए हमें जोड़ने वाला काम है और इसे हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, पूरा करना है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं, साम्राज्य का रूप होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया, उस भाव की ताकत आज मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के पुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आज हम भारत का सपने को सींचा, वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना है, समृद्ध भारत के सपने को सींचे वंदे मातरम की भावना। इस भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना 2047 है। देश विकसित भारत बन के रहे। और आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत देख सकता था, तो 25 साल पहले हम तो शुद्ध भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। और इस सपने के लिए मैं आपको बता सकते हैं, इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता है। वंदे मातरम का हरण करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर चले, देशवासियों को साथ लेकर चले, हम तो मिलकर के चले, इस सपने को पकड़े। ये भाव के साथ इत्तेजा का आरंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 2 सदनों में देश के अंदर वो भाव वाला कारण बहेगा
देश को प्रेरित करने का कारण बनेगा, देश नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। इन्हीं सबके साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर इस महत्वपूर्ण